3 on application, 4 on allotment, 2 on first call, and 3 on final call. So if you add up, it should become 11. Now every shareholder is supposed to pay you 11 rupees instead of 10 rupees. तो आपका 3 रुपया एप्लीकेशन का है, 4 अलॉटमेंट का है, हो गया 7 प्लस 2 9 और सर 12 हो रहा है। 1 मिनट, फाइनल कॉल को 2 कर दो. फाइनल कॉल इज 2 rupees, not 3 rupees. Final call is 2 rupees, not 3 rupees. 3 plus 4 7 plus 2 9 plus 2 11. Final call is 2 rupees, not 3 rupees. So 10 plus 1 11 rupees होना चाहिए. 3 plus 4 7 plus 2 9 plus 2 11. Okay. Out of that, where is the premium? Where is the premium of rupee 1? Where is the premium of rupee 1? Which part it is lying with? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के साथ पड़ा हुआ है. ओके, वैसे भी आपको अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इट इज लाइंग विथ अलॉटमेंट. इज दैट क्लियर? नाउ रीड द क्वेश्चन आगे. द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 25,000 shares. नाउ टेल मी, is the issue oversubscribed or undersubscribed? What is happening? Oversubscribed. आपने तो 20,000 shares issue किया था. People have subscribed for 25,000 shares. So ज्यादा applications आ गए. Oversubscription हो गया. Oversubscription में what choices does the company have? It has got 2 choices. Choice number 1, rejection and refund. Choice number 2, pro rata. Look at the problem. They'll give you some information. Excess money on application was used for allotment. The excess money on application was used for allotment. What does that indicate? That Pro rata. That's pro rata, right? Excess money on application was used for allotment का मतलब ही होता है कि pro rata है. Pro rata में हम लोग refund नहीं करते हैं, reject नहीं करते हैं. Okay? 25,000 को 20,000 अलॉट कर दिया और एक्सेस पैसा अलॉटमेंट में डाल दिया, क्योंकि हमें पता है कि सबको अलॉटमेंट तो भरना ही है. ऑल द शेयर होल्डर्स आर सपोज टू पे द अलॉटमेंट मनी. तो अलॉटमेंट में उतना कम पैसा भरो. सिंपल एज दैट. अलॉटमेंट में उतना कम पैसा दे देंगे वो लोग. तो प्रो रेटा एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया है. देन क्या दिया है पढ़ना? P was allotted 100 shares, did not pay the allotment money. Q was allotted 200 shares, did not pay the first call. 100 shares of P and 200 shares of Q were forfeited after first call. So what is happening? Are you able to understand, interpret from the question? P did not pay the allotment. Q did not pay the first call. And then company forfeited the share after first call. So is the company forfeiting the shares immediately after allotment? No. No. Company is forfeiting the shares, but not after allotment. It is forfeiting after first call. तो हुआ क्या? P ने डिफॉल्ट किया अलॉटमेंट, तो कंपनी रुका. कंपनी को गुस्सा नहीं आया. कंपनी हैड पेशेंस. तो अलॉटमेंट के बाद रुका. फिर Q भी ज्वाइन हो गया फर्स्ट कॉल में. तो P और Q दोनों ने ऑब्वियसली फर्स्ट कॉल नहीं भरा होगा, क्योंकि P ने अलॉटमेंट नहीं भरा, तो P ने फर्स्ट कॉल तो भरा ही नहीं ऑब्वियसली. तो P और Q दोनों ने डिफॉल्ट किया. कंपनी बोला ये तो यार गाड़ी कहीं और जा रही है, अभी डिफॉल्टर बढ़ते जा रहे हैं, अभी ब्रेक मारते हैं. तो फर्स्ट कॉल के बाद उसने कैंसिल कर दिए. तो आफ्टर फर्स्ट कॉल इट इज कैंसिलिंग whose shares? P and Q both. It is cancelling P and Q both. Is this clear? Then what is happening? After first call cancelled, उसके बाद क्या हो रहा है? R was allotted 300 shares, did not pay the final call. R भी अभी final call पे default कर रहा है. उसके बाद दिया है 300 shares of R were forfeited after final call. So when are we cancelling R का share? When are we cancelling R shares? After the final call. We are cancelling R ka shares after the final call. So are you able to structure the sum? After allotment कुछ cancellation नहीं हुआ है. फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा Q ने. फिर आफ्टर फर्स्ट कॉल दोनों का कैंसिल किया, P और Q का. फिर सेकंड कॉल R ने नहीं भरा. आफ्टर सेकंड कॉल R का भी कैंसिल कर दिया. अब री इश्यू कब कर रहा है? पढ़ो आगे.
All the forfeited shares were reissued for rupees 9 per share. Tell me, when are we reissuing the share? Are we reissuing the shares in between or at the end? At the end. At the At end. the end. इसलिए आपको प्राइस देख के भी आइडिया आ रहा होगा कि 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 9 रुपए में इश्यू कर रही है, बराबर है. तो दिस इज रीइश्यू एट द एंड, बट फोर फीचर इन बिटवीन. फोर फीचर कैंसल बीच में किया, लेकिन रीइश्यू एंड में किया. कंपनी रीइश्यू भी बीच में कर सकती है, रिमेंबर दैट. कंपनी कैन रीइश्यू द शेयर्स इन बिटवीन, जो हम क्वेश्चन 18 में देखेंगे. इसी का केस है, इसी का कनेक्टेड सम है क्वेश्चन 18. we'll learn from that sum, that is reissue in between. फिलहाल we'll do reissue at the end, reissue at the end. Okay, so four feature cancel बीच में किया है, लेकिन reissue end में किया है. Let's understand how to do that now. What should be the first entry? What should be the first transaction, Parshva? सबसे पहला एंट्री क्या होगा आपका? Equity share application account. Okay, bank account debit to equity share application account. एक ध्यान से प्रॉब्लम पढ़ो और बताओ, हाउ मच मनी हैव यू रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन. पैसा कितना मिला आपने को एप्लीकेशन पे? Come on. 2 lakh. No. How come 2 lakh? How many shares were applied for? Application कितना shares पे मिला आपने को? 25. हाँ, 25,000 into 2,50,000. अरे भाई 10 रुपया थोड़ी मांग रहे हो एक साथ. एप्लीकेशन मनी मांगा है, पार्ट्स में मांग रहे हो पैसा. 75,000. 25,000 into 3, 75,000. 3 rupees on application. Okay. पूरा पैसा थोड़ी साथ में, पूरा पैसा साथ में मांग दो, एक ही एंट्री में सम खत्म हो जाता. Got it? यहाँ पे आप पार्ट्स में पैसा ले रहे हो. एप्लीकेशन पे 3 रुपया, फिर 2-4 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ी तब 4 रुपया मंगवाया अलॉटमेंट पे, फिर 2-4 महीने बाद फर्स्ट कॉल पे मंगवाओगे, 2-4 महीने बाद सेकंड कॉल पे. ओके, दिस इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. Second one. Manan, what will be the second entry? Equity share application to equity share capital. Equity share application to equity share capital. बस या और कुछ बोलो. Share premium भी आएगा. शेयर प्रीमियम ये एंट्री में थोड़ी आता है. Allotment. Sorry. हाँ, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? खत्म, बस एप्लीकेशन टू कैपिटल. Think about it. Have you received any excess money? If you have received any excess money, it needs to be adjusted in this entry. Yes, to bank. Bank. Are you refunding? Are you rejecting and refunding? No. If you reject and refund, then it would have been to bank. So to equity share allotment. हाँ, सब बोल देने का, एक तो बैठेगा ही. To equity share allotment. बराबर है? It will be to equity share allotment. If you reject and refund, it will be to bank. You are not rejecting. There is an excess का problem, और excess amount आप second entry में ही adjust करते हो. अगर refund करना है तो to bank, और अगर allotment में adjust करना है तो to allotment. यहाँ पे pro rate है तो obviously will adjust in allotment. Correct? Can you tell me the amounts, Vrushti? Equity share application में कितना आएगा? Equity share application. 25,000 into 3. Yeah, that is 25. What do you have on top? Then, how much of that will go in capital? Sir, am I audible? Yeah. Yeah, audible. How much you can transfer to capital out of 25,000 shares? Think.
इश्यू कितना शेयर्स किया है तुमने? 4 shares. हैं? मतलब How many shares has the company issued? 25,000 shares. No, it received applications for 25,000. It had 20,000. issued only 20,000. ज़्यादा मिल गया है. So 20,000 into 3. Only required shares का money you can transfer. 20,000 into 3, 60,000. बाकी का 15,000 will obviously go to allotment. Excess money on application will go to allotment. यहाँ पे application to allotment का ratio क्या है आपका? What is application to allotment का ratio? What is applied to allotment का ratio? It is 25,000 को 20,000. That is what? 5:4. 5:4 का ratio है. Okay? 5:4 का ratio. This is 5:4. मतलब हर बंदा जिसने 5 शेयर अप्लाई किया ना उसको 4 मिला है. हर बंदा जिसने 10 शेयर अप्लाई किया उसको 8 शेयर अलॉट हुआ है. जिसने 20 अप्लाई किया उसको 16 अलॉट हुआ है. ओके, जिसने 200 अप्लाई किया उसको 160 अलॉट हुआ है. तो हर एक शेयर होल्डर का एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है इन दिस एक्सेस मनी ऑफ एप्लीकेशन. इज दिस क्लियर? So that we have transferred to allotment. Now third entry. Dhwani, can you tell me the third entry? Equity share allotment account to equity share capital account to share premium. Equity share allotment account debit to equity share capital account to share premium account. Very good. Third entry में you will adjust the premium. Premium हमेशा due amount में adjust करना है, receivable में adjust करना है. Equity share allotment to capital to premium. Can you tell me the amounts? 20,000 into 4. 20,000 into 4. 80,000 rupees will go in allotment. How much in capital out of this? 20,000 into 3. 20,000 into 3, that is 60,000. And how much in premium? 20,000 into 1 rupee. Absolutely right. Okay. ड्यू अमाउंट में कुछ एक्सेस का लफड़ा नहीं है. एक्सेस पैसा मिला है ना, वो अलॉटमेंट रिसीव्ड में उतना कम रिसीव कर लेना. ड्यू अमाउंट तो पूरे से क्रेडिट कर लेना. कैपिटल और प्रीमियम हमेशा पूरा अमाउंट से इट विल गेट क्रेडिटेड. So 20 into 4, 80,000 you are expecting on allotment, out of which 60 is towards capital and 20 is towards premium. 60,000 capital का है. This is allotment due and premium adjusted. Okay, allotment due and premium adjusted. 60,000 capital का, 20,000 premium का. Allotment के साथ पड़ा हुआ है premium. Next entry very important. Devi C, what should be the next entry? Fourth one, bank account, calls in arrears account to equity share allotment account. Very good. Bank account debit, calls in arrears account debit to equity share allotment account. Think and tell me how much will you write in allotment पहले. Allotment में कितना लिखना? 65,000. Very good. Out of 80 you have already received 15. So now you are supposed to receive 65 ideally. Ideally you are supposed to receive 65. So allotment को credit कर दो 65 से. But did you actually receive 65? No. No, we are calls in arrears. Who is defaulting? कौन default किया है? P, Mr. P. How many shares was P holding? 100 into 4. So can I do 100 into 4? Calls in arrear 400. Would that be right? Yes. All of you agree on that? 100 into 4, 400. No. Why? पैसा है Pro rata है. अलॉटमेंट में वो प्रो रेट है. Excess पड़ा हुआ है. So he is not supposed to pay 400. ये आ रहा है note. Call in arrear of P. याद आया ये note हमने पहले भी बनाया था. I made this note earlier. Calls in arrears of P का note बनाना पड़ेगा. 100 into 4, 400 नहीं कर सकते. क्यों 400 नहीं कर? क्योंकि उसको allotment में 400 भरना ही नहीं है. उसको अलॉटमेंट में 400 भरना ही नहीं है. उसको कम पैसा भरना है क्योंकि उसने एप्लीकेशन पे ज्यादा भरा हुआ है. वही हम लोग ढूंढ रहे हैं कितना ज्यादा भरा है. देखो
दिस इज कॉल इन अरियर ऑफ पी। अप्लाइड टू अलॉटेड का रेशियो क्या है? अप्लाइड टू अलॉटेड का रेशियो क्या है? 25,000 इज टू 20,000, 5:4 का रेशियो है। पी को कितने शेयर्स अलॉट हुए? क्वेश्चन में पढ़ो, हाउ मेनी शेयर्स वाज पी अलॉटेड? 100। तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? 125. 125. 125 के लिए अप्लाई किया होगा। ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। पिक्चर का टिकट का एग्जांपल है, 200 रुपए की सीट है, आपने 250 रुपए भर दिए है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप पिक्चर देखने जाओगे और 200 की टिकट होगी तो वापस आपको 200 देने की जरूरत नहीं है ना, 150 दे के काम चल जाएगा, क्योंकि 50 रुपए आपने दिए हुए हैं अपने टिकट विंडो पे ऑलरेडी। तो यहाँ पर अगर उसने 100 शेयर उसको मिले, अलॉट हुए हैं, तो उसने अप्लाई कितने किए होंगे? 125 किए होंगे। तो ऑब्वियसली उसने एप्लीकेशन भी 125 पे भरा होगा। 125 इंटू 375 रुपीज भरा होगा उसने ऑन एप्लीकेशन। लेस एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, उससे कितना एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होगा कंपनी को? 100 into सिर्फ 3. 100 इंटू 300 का रिक्वायर्ड होगा। तो उसका कितना रुपया एक्सेस पड़ा हुआ है कंपनी में? एक्सेस कितना पड़ा हुआ है? 75 रुपीज पड़ा हुआ है। जैसे हमने ऊपर देखा ना वो एक्सेस, सबका एक्सेस 15,000 रुपए एक्सेस था ना एप्लीकेशन पे, 15,000 एक्सेस। उस 15,000 रुपए में इस बंदे का 75 रुपीज है, दैट इज द मीनिंग। उस 15,000 में मिस्टर पी का 75 रुपीज पड़ा हुआ है। नाउ लेस अलॉटमेंट रिक्वायर्ड, हाउ मच नॉर्मली यू वुड हैव पेड ऑन अलॉटमेंट, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, उसको एक्चुअली कितना भरना होगा? नॉर्मल केस में कितना भरना होता? अगर कुछ एक्सेस नहीं होता तो कितना भरना होता अलॉटमेंट में उसको? अलॉटमेंट उसको 100 शेयर्स पे मंगवाती कंपनी 4 रुपए के हिसाब से 400 रुपया। बट इन दिस सिचुएशन वुड द कंपनी आस्क फॉर 400 रुपीज फ्रॉम पी? No. No, because he is already having 75 rupees in the kitty with the company. So how much will the company ask from Mr. P at the time of allotment? 325. 325. because he is already having 75 rupees with the company. This 325 is not paying. इसको बोलते हैं call in arrears. This is what is called as call in arrears. सर इसमें ऐसा कर सकते हैं कि एक साइड 20,000 शेयर्स पे 65,000 भरना है, तो 100 शेयर्स पे कितने? तो उसे 325 आएगा अमाउंट। In this situation you can do, yes, yeah, that is also possible. You can show it in that way. 20,000 पे 65,000 भरना है, तो 100 शेयर्स पे कितना? 325. तो वो हर समय करेंगे तो राइट ही आएगा ना? Yes. You can apply that. Perfect. Okay. No problem. You can do that. So calls in arrears over here would be 325. All of you got that? 325 क्यों आया? 400 क्यों नहीं आया? क्योंकि 400 में से already 75 rupees were lying with the company. Okay. So is ideally supposed to be only 325. वो उसने नहीं भरा, वो उसका कॉल इन अरियर हो गया। और कोई डिफॉल्टर है अलॉटमेंट में पी के अलावा? प्लीज चेक। हेलो, पी के अलावा कोई डिफॉल्टर है अलॉटमेंट में? चेक करो। नहीं है। क्यू ने नहीं भरा है, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल नहीं भरा, वो फर्स्ट कॉल से ज्वाइन हो रहा है। ओके, यहां पर तो खाली पी है, तो पी का डिफॉल्टेड है 325 रुपीज। So how much will write in bank? 64,675 rupees. 64,675. Is that right? 64,675. Yes, Dev, you have a doubt? यस सर। सर मेरे को एक बार समझा ना, 65,000 किधर से आया? 65 किधर से आया? देखो, अलॉटमेंट में we were expecting 80,000. 20,000 into 4. But out of those 80,000, we have already received now 15,000 extra at the time of application. 15,000 ज्यादा भर दिया है ना पब्लिक ने, तो हमने रख लिया है, हमने रिफंड नहीं किया है। हमने क्या बोला? अलॉटमेंट के वक्त कम पैसा भरना। तो अलॉटमेंट के वक्त वापस 80,000 रिसीव नहीं करोगे। 80 - 15,
You will ask for only 65,000. Got it? अगर कुछ एक्सेस नहीं होता तो it would have been 80,000. एक्सेस था ऊपर 15,000 ना, तो अभी 65 हो जाएगा, 80 minus 50. ऊपर एक्सेस 10 होता तो अभी 70 हो जाएगा, ऊपर एक्सेस 5 होता तो अभी 75 हो जाएगा. दैट वे जितना एक्सेस आया है उतना पैसा कम रिसीव करो अलॉटमेंट में. Got it? So 65,000 we were expecting. 65,000 we were expecting. Out of which ये बंदा मिस्टर पी ने डिफॉल्ट कर लिया. मिस्टर पी ने डिफॉल्ट कर लिया और उसका 325 नहीं आया, तो बैंक में आएगा 64,675. Got it? Then fifth entry में क्या किया है? Did the company forfeit the shares at this point of time? Did the company cancel the share immediately after allotment? No. It went for first call. So what should be the next entry, Dhriti? Fifth entry, right? Fifth Equity share first. Equity share first call to equity share capital 40,000. Equity share first call account debit to equity share capital account. Equity share first call account debit to equity share capital account. बराबर है? Yes, sir. Amount कितना आना चाहिए? 40,000. Perfect. 20,000 shares हैं. 20,000 shares पे multiplied by 2 rupees. That comes to 40,000 rupees. 20,000 into 2 will give you 40,000 rupees. That is what you are expecting on first call. This first call due. No premium. Okay. Now, Jainam, what should be the entry for first call received? Bank call in arrears to first call to equity share first call. बराबर है. Bank call in arrear to equity share first call account. Who is defaulting on? पहले तो बताओ first call में कितना लिखोगे? First call में क्या amount आना चाहिए अभी? 40,000. 40,000. अभी कुछ एक्सेस नहीं है. एक्सेस सब खत्म हो गया अलॉटमेंट पे और सबने भर भी दिया बैलेंस मनी. सो अभी कोई एक्सेस नहीं है. वो पिक्चर का टिकट का एग्जांपल है. 200 रुपीज इज द टिकट. आपने 250 दे दिया था टिकट विंडो पे और बाद में नेक्स्ट टाइम गए तो 150 दिया. अभी तो टोटल 400 दे दिया आपने दो पिक्चर का. तीसरी बार पिक्चर देखने जाओगे तो वापस 200 देना पड़ेगा. कुछ एक्सेस पड़ा नहीं है. तो यहाँ पर भी वही केस है. फर्स्ट कॉल के वक्त एवरीवन इज सपोज्ड टू पे फुल अमाउंट 40,000 रुपीज. 2 रुपीज ऑन शेयर, 2 रुपीज पर शेयर. 40,000 बनना है. बट हु इज डिफॉल्टिंग ऑन फर्स्ट कॉल? जैनम. PNQ. PNQ both. तो टोटल हाउ मेनी शेयर? 300. वेरी गुड. 300 शेयर्स पे कितना? Into 2. 600. 600. That is your defaulting amount. तो आपका पैसा you will receive is 39,400. 39,400 is what you receive in bank. 39,400 is what you receive in bank. Yashvi, what is happening in the 7th entry now? Share forfeiture of Very good. देखो क्वेश्चन पढ़ो सब लोग. यहाँ पे आके कंपनी की सटक ली. कंपनी को गुस्सा आ गया कि अलॉटमेंट भी नहीं भरा, फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा, आप कैंसिल करो इनके शेयर. तो यहाँ पर आके इट इज कैंसिलिंग द शेयर. बीच में इन फोर फीचर इन बिटवीन what should be the journal entry for forfeiture? equity share capital account, share premium account to calls Very in arrears to share forfeiture. वेरी गुड. शेयर प्रीमियम को डेबिट कर ही डालो. मैं तो बोलता हूँ फोर फीचर एंट्री में शेयर प्रीमियम को डेबिट कर ही दो. फिर अप्लाई करना रूल बैठ के आराम से. received should be debited, not received, once received should not be debited, not received should be debited. फिर ठीक है नील कर देना, बट पहले फोर फीचर में डेबिट कर ही डालो इसको. तो शेयर प्रीमियम कैपिटल टू कॉल इन अरियर टू शेयर फोर फीचर. मुझे बताओ यशवी, कैपिटल कितना शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो आप? 300 shares. इनटू व्हाट? 8. Why 8 rupees? Why 8 rupees? क्योंकि सेकंड कॉल अभी तक मंगवाया नहीं. Exactly. देखो सब लोग ध्यान से स्क्रीन पे देखना. We are cancelling the shares, but not after final call. We are cancelling the shares after first call. Can you all see that? So you will multiply the capital with the called up value. हमेशा forfeiture as well as reissue.
यू मल्टीप्लाई द कैपिटल विथ कॉल्ड अप वैल्यू। अभी तक कितना कॉल्ड अप है कैपिटल, बताओ मेरे को। हाउ मच इज कॉल्ड अप कैपिटल, कितना मंगवाया है सबसे हमने। हाउ मच मनी यू हैव आस्क्ड अभी तक टुवर्ड्स कैपिटल, कितने से क्रेडिट हुआ है कैपिटल अभी तक ऊपर वाले एंट्रीज में। पहले एप्लीकेशन के वक्त 3 रुपीज से किया, अलॉटमेंट के वक्त भी 3 रुपीज से किया, कैपिटल की बात चालू है नॉट प्रीमियम। तो 3 + 3 6 + 2 8, कैन यू सी दैट। सो कैंसिल भी कितने से करने का, 8 रुपीज से करने का। 4 फीचर के वक्त कैंसिल भी 8 रुपीज से होगा। गॉट इट। What if, guys, you all tell me, what if you would have cancelled the shares after allotment? After allotment अगर आपने कैंसिल किया होता तो कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई, 6. 3 + 3 6 रुपीज बराबर है, या 3 + 4 7 रुपीज, 6 रुपीज। कैपिटल मतलब कैपिटल, प्रीमियम नहीं उसमें, खाली कैपिटल। ओके, शेयर कैपिटल का 3 + 3 6। इफ यू वुड हैव कैंसल्ड आफ्टर अलॉटमेंट, would have multiplied capital by 6 rupees. It would have been known as 6 called up. उसको 6 called up बोलते हैं। This is 8 called up. 8 called up का मतलब आपने 8 रुपया मंगवाया, उसमें जो लोग ने नहीं भरा आपने कैंसिल कर दिया उसका शेयर। तो 8 रुपए से आप कैपिटल को कम कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो। तो यहाँ पर 300 × 8 आएगा। एब्सोल्युटली राइट यशवी। ओके, प्रीमियम का क्या रूल है सब लोग बताओ मेरे को। 4 फीचर के व्हाट इज द रूल फॉर प्रीमियम। Once received should not be debited, not received should be debited. तो पढ़ो, क्वेश्चन में पढ़ो, P और Q दो डिफॉल्टर है। Did P pay the allotment money? No. No. And premium was lying with allotment. So did P pay the premium? No. No. तो premium not received should be debited. P का premium debit होना चाहिए। Let's take Q. Q ने allotment भरा था? Yes. Yes. Q ने allotment भरा था मतलब प्रीमियम भी भरा होगा। तो प्रीमियम वंस रिसीव्ड शुड नॉट बी डेबिटेड। उसको डेबिट करने की जरूरत नहीं है, उसका जेन्युइन प्रीमियम में क्रेडिट और सामने कैश भी आ गया। तो प्रीमियम के सामने कैश पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, तो कोई डेबिट देने की जरूरत नहीं है आपको। तो किसका प्रीमियम डेबिट करना है, P का कि Q का? Whose premium will be debit? P. तो P के कितने शेयर्स थे? 100 shares into premium was 1 rupee. That becomes 100 rupees. 100 into 1 100 rupee. समझा मैंने दोनों का क्यों नहीं किया? Premium once received should not be debited, not received should be debited. Call in arrear. What amount you'll write in call in arrear? जो नहीं भरा ऊपर से ऐड कर लो, P और Q दोनों का मिल जाएगा आपको। ये 600 प्लस ये 325, टोटल कितना होता है? तो 925. 925 is call in arrear. तो how much you'll write in share forfeiture? सर आपने 6th एंट्री में 300 क्यों लिया है? 6th एंट्री में 300, 100 of P and 200 of Q है ना। अच्छा हाँ। P ने अलॉटमेंट नहीं भरा तो ऑब्वियसली फर्स्ट कॉल नहीं भरा है उसने। तो 100 of P and 200 of Q। ये मिल रहा है 1575 मिला क्या आपको? मिला सबको 1575। लेट्स वेरीफाई दिस 1575। 1575 क्या है? 4 फीचर है। 4 फीचर का मतलब क्या? कैपिटल की तरफ जो पैसा भरा था वो हड़प लिया। P ने कितना भरा था, Q ने कितना भरा था, बताओ मेरे को। व्हाट डिड P पे? एप्लीकेशन, ओनली एप्लीकेशन मनी, ओनली एप्लीकेशन मनी। तो शुड आई डू 100 into 3 or should I do 125 into 3? What do you think? 125 into 3. Why 125 into 3? Applied share. हाँ, applied share. ये बताया था, याद है शॉर्टकट। जब बंदे ने खाली एप्लीकेशन मनी भरा है और आपको उसका 4 फीचर अमाउंट ढूंढना है तो टेक इज अप्लाइड शेयर्स, क्योंकि उस भाई ने एक्चुअली 300 नहीं भरा, उस भाई ने 375 भरा है। 300 एप्लीकेशन का और 75 अलॉटमेंट का। 75 रुपीज अलॉटमेंट में भी भरा है ना, एक्सेस था ना उसका, फिर भाग गया वो। He has paid 375 in all. Okay. What about Q? What did Q pay? Q ने क्या भरा था?
अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन दोनों भरा था। सो टोटल मिला के कितना होता है? अलॉटमेंट और एप्लीकेशन मिला के कितना होता है? 3 + 4 7 रुपीज भरा था उसने, तो 7 ले लूं? बराबर है 7। 6 रुपीज लेना है कि 7? हाँ, टुवर्ड्स कैपिटल। शेयर फॉर फ्यूचर में वही पैसा लिखना है विच यू हैव रिसीव्ड टुवर्ड्स कैपिटल। तो 100 into 6, that will be 600. So 600 plus 375. अरे 200 sir. 200 into 6. अरे 200 शेयर। हाँ, PQ का 200 शेयर, 200 into 6, 1200 रुपया। 1200 plus 375, that will be 1575. Got it? सर हम लोग क्यू में 250 शेयर्स नहीं लेंगे ना? नहीं लेंगे, क्योंकि देखो उसने, अगर तुम लेते भी हो तो उसने क्या किया है, 250 शेयर इंटू 3 750 भरा है ना एप्लीकेशन पे, बराबर है। फिर अलॉटमेंट में कितना भरना होगा उसको? वैसे तो 200 into 4 800 भरना होगा उसको अलॉटमेंट पे, लेकिन कंपनी उससे 800 नहीं मांगेगा, क्योंकि पहले ही उसका 50 into 3 150 एक्सेस है ना, तो उससे मांगेगा कितना? अभी खाली 650 मंगवाएगा अलॉटमेंट पे। तो टोटल एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट अगर देखा जाए तो उसने 1400 ही भरा है, दैट इज 200 into 7। गॉट इट? उसने एप्लीकेशन पे 750 भरा है, लेकिन अलॉटमेंट में 650 भरा है। टोटल मिला के 1400 रुपया भरा है, जिसमें से 6 रुपया कैपिटल का और 1 रुपया प्रीमियम का। तो अपने को डायरेक्टली 200 into 6 ही मिल जाएगा, 1200। पी के केस में मैंने क्यों अप्लाइड शेयर लिया? क्योंकि उसने खाली एप्लीकेशन भरा था, खाली सिर्फ एप्लीकेशन भरा और भाग गया, तो उसका एक्सेस भी लेना पड़ेगा ना, वो भी टुवर्ड्स कैपिटल आया हुआ है, वो भी हड़प लिया कंपनी ने। कंपनी ने 300 तो हड़पा, वो 75 भी हड़प लिया, 375 हड़पा है, ऑल टुवर्ड्स कैपिटल। प्रीमियम है ही नहीं उसमें पी के केस में। क्यू के केस में ऐसा नहीं हो सकता। क्यू के केस में अप्लाइड शेयर्स लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अगर तुम पहले अप्लाइड लेते हो, बाद में उसने अलॉटमेंट में कम भरा है, तो अप्लाइड प्लस अलॉटमेंट तो फिटूस हो गया। अप्लाइड प्लस अलॉटमेंट देखोगे तो ये पेड 200 into 6 1200 ओनली। गॉट इट? जितना ज्यादा पैसा उसने एप्लीकेशन पे भरा है, उतना कम पैसा उसने अलॉटमेंट में भरा है। दोनों को मिला के देखोगे तो सेम ही भरा है। अप्लाइड प्लस अलॉटेड उसने 6 का 6 रुपया भरा ही है 200 शेयर्स पे। गॉट इट? सर इसमें प्रीमियम क्यों नहीं गिनते? प्रीमियम क्यों नहीं गिनते? क्योंकि ये जो है फोर फीचर, ये रिजर्व है कंपनी का, तो तुम एक रिजर्व में डाल रहे हो ना, ये प्रॉफिट रिजर्व में डाल रहे हो शेयर फोर फीचर में। प्रीमियम ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, थर्ड एंट्री में दिख रहा है आपको, सबके प्रीमियम के साथ क्यू और पी का दोनों का प्रीमियम क्रेडिट हो चुका है, तो ऑलरेडी क्रेडिटेड है क्यू का प्रॉफिट ऊपर प्रीमियम में। प्रीमियम अकाउंट में सेपरेटली प्रीमियम क्रेडिट हो चुका है पहले ही। अगर इधर वापस लोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो प्रीमियम में तो है ही ऑलरेडी प्रीमियम, और फोर फीचर में भी प्रीमियम डाल रहे हो, तो डबल रिजर्व हो जाएगा तुम्हारा, बैलेंस शीट टैली ही नहीं होगा तुम्हारा। 200 into 3 और 200 into 3 भरा है। हाँ, ऐसा देखा जाए तो 200 into 3 एप्लीकेशन का, 200 into 3 अलॉटमेंट का, यस पेड 200 into 6 और प्लस 200 into 1 टुवर्ड्स प्रीमियम। वो प्रीमियम ऑलरेडी पड़ा हुआ है ऊपर, क्रेडिट हो, उसको टच करने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम का पैसा भी हड़प लिया है, बट वो सेपरेट प्रॉफिट अकाउंट में, प्रीमियम अकाउंट। गॉट इट? सो यहाँ पर फोर फीचर में खाली कैपिटल की तरफ आया हुआ प्रॉफिट ले रहे हैं हम लोग, 375 plus 1200 1575। Got this verification part? Now coming back to four feature entry, four feature के बाद क्या कंपनी यहीं पर रीइश्यू कर रहा है? Is the company reissuing the shares immediately? No, it is going for second call. So Isha, what will be the next entry? Yes, sir. It will be equity shares final call to equity shares capital 39,400. Very good, very good. See, equity share second and final call to equity share capital. Normally we would have written
20,000 into 2, 40,000. But can we ask the second call on 20,000 shares now? No. Why? Because sir, we have already forfeited 300 shares. Forfeited 300 shares. 20,000 में से 300 को कैंसिल कर दिया है तो बचे 19,700. 19,700 into 2 will give you 39,400. 39,400 ही मंगवा सकते हो आप सेकेंड कॉल पे. शायद है कल भी किया था हमने फोर फीचर इन बिटवीन. जब भी आप फोरफिट कर लेते हो तब बैलेंस जो होता है, रिमेनिंग कॉल जो होता है, वो रिमेनिंग शेयर्स पे होगा. क्योंकि वो 200 शेयर तो गए, 300 शेयर तो गए, अभी बुक्स में ही नहीं है, कैंसिल हो चुके हैं वो शेयर्स. उनका हड़पा हुआ पैसा पड़ा हुआ है कंपनी के फोर फीचर अकाउंट, बट शेयर्स नहीं है. शेयर्स आर नो मोर इन एग्जिस्टेंस. नाउ यू आर हैविंग ओनली 19,700 into 2 रुपये. चेंज करवाया मैंने 2 रुपया. फाइनल कॉल पे 2 रुपया करवाया. देन व्हाट विल बी द 9th एंट्री आदित्य फाइनल कॉल का? Bank call in arrears to equity share second and final call. Very good. Bank call in arrear to equity share second and final call. Bank call in arrear to equity share second and final call. सोच के बताओ फाइनल कॉल में कितना आएगा? 39,400. 39,400. कॉल इन अरियर में किसने डिफॉल्ट किया? अभी पी क्यू आर तीनों ने, पी ने, क्यू ने, आर ने, किसने? खाली आर. Why not P and Q? उनका शेयर forfeit हो. उनका शेयर forfeit हो चुका है, कैंसिल हो चुका है. So now we are dealing with only R. How many shares of R? 300. 300 into 2 rupees, 600. Perfect. तो तुम्हारा बैंक में कितना जाएगा? 38,800. ओके. कुछ वर्किंग नोट कॉल इन अरियर का करने का जरूरत नहीं है, अलॉटमेंट पे एक्सेस खत्म हो चुका था. खाली अलॉटमेंट पे ही मैंने वर्किंग नोट बनाया कॉल इन अरियर का पी के लिए, क्योंकि उसका एक्सेस पैसा था. अभी तो कोई एक्सेस नहीं है, सबको 2 रुपया भरना था, तो मिस्टर आर को भी 2 ही रुपया भरना था. तो 300 into 2, 600 is his call in arrear. Is this clear? What is happening after this, Mokshit? 10th एंट्री में क्या होगा? सर फोर फीचर. इधर वापस फोर फीचर हो रहा है. अभी किसका शेयर फोरफीट करोगे? आर का. आर का शेयर कैंसिल करोगे. आर के कितने शेयर हैं? 300. मुझे ध्यान से बताओ एंट्री क्या होगी फोर फीचर? इक्विटी शेयर कैपिटल टू फोर फीचर टू अरियर. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. प्रीमियम भी कर ही डालो. डेबिट प्रीमियम है तो प्रीमियम भी कर ही डालो, बाद में देखते हैं उसका रूल अप्लाई करके. इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर प्रीमियम टू कॉल इन अरियर टू शेयर फोर फीचर. बराबर है. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर टू शेयर फोर फीचर. Think and tell me, Mokshit, you will multiply your capital with what amount? 10 rupees. Why 10 rupees? Why 10 rupees? Because when are we cancelling the shares? After final. After final call. Did you get the difference? आप अगर फर्स्ट कॉल के बाद कैंसिल कर रहे हो ना, you would have multiplied it by 8 rupees. पहले क्यों 8 से किया, अभी क्यों 10 से कर रहा हूं? कुछ समझ में आ रहा है? कॉल्ड अप वैल्यू. कॉल्ड अप वैल्यू. बीच में अगर आपने फर्स्ट कॉल के बाद कैंसिल किया होता ना तो 8 से मल्टीप्लाई होता कैपिटल. यहाँ पे आप एंड में कर रहे हो तो 10 से, क्योंकि 10 से क्रेडिट हुआ है, सबका कैपिटल 10 से क्रेडिट हुआ है, तो 10 से ही डेबिट होगा. ओके. सो 300 into 10 इतने से कैंसिल करना है आपको, दैट इज 3,000. प्रीमियम का क्या रूल है बताओ मेरे को सब लोग. प्रीमियम का क्या रूल है एट द टाइम ऑफ फोर फीचर? वंस रिसीव्ड should not be debited, not received should be debited. अपनी अंतरात्मा से पूछो सब लोग, आर ने अलॉटमेंट भरा था क्या? हाँ. अपना प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसने प्रीमियम भी भरा है. तो अगर प्रीमियम भरा है तो रिसीव कर लिया है. वंस रिसीव should not be debited. तो करूं कि नहीं करूं? नहीं करूंगा तो नील कर दूंगा मैं यहाँ पे. बड़ी सिंपल सी बात है. What amount you write in call in arrear? किसका call in arrear लिखना है? आर का. आर का call in arrear कितना है देखो यहाँ पे? 300 into 2. ये रहा. आर का ही लिखना है 600 रुपया. और फोर फीचर में कितना आएगा? 2,400. Let's verify this 2,400. मुझे बताओ आर ने क्या भरा था? सब लोग सोचो आर ने क्या भरा था?
एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल भरा था आपने, ध्यान से देखना सब लोग। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल भरा था सबने, अग्री? हाउ मच ऑन एप्लीकेशन? 3 rupees. हाउ मच ऑन अलॉटमेंट? 4 rupees. एंड हाउ मच ऑन फर्स्ट कॉल? 2 rupees. 9 रुपया भरा है उसने। 9 रुपया ले लूं? 8 rupees. Why 8 rupees? प्रीमियम नहीं गिनना है। प्रीमियम नहीं, क्यों नहीं गिनना है? टुवर्ड्स डबल कैपिटल। रिजर्व। क्यों नहीं गिनना है प्रीमियम? क्यों खाली Double अमाउंट reserve. टुवर्ड्स कैपिटल? प्रीमियम ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, प्रीमियम में पैसे आ चुके हैं, प्रीमियम क्रेडिट होके मस्त अपने जगह पे पड़ा हुआ है, वापस लेने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे आप सिर्फ कैपिटल को कम कर रहे हो और फोर फीचर को बढ़ा रहे हो, कैपिटल घटा रहे हो, रिजर्व बढ़ा रहे हो। प्रीमियम वैसे का वैसा रहने दो, पहले ही क्रेडिट करके रखा हुआ है। इज इट क्लियर? सो डोंट टेक प्रीमियम हियर। फोर फीचर में खाली कैपिटल की तरफ आया हुआ पैसा, दैट इज 300 into 8, 2400, 8 रुपया। उसी दिमाग में बात, शेयर फोर फीचर में ओनली द मनी रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल, नॉट टुवर्ड्स प्रीमियम। ओके, दैट डन। नाउ व्हाट? जानवी, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर दिस? फोर फीचर के बाद रीइश्यू। वेरी गुड। किसका शेयर रीइश्यू कर रही है कंपनी? खाली आर का, पी का, क्यू का, कि तीनों का? सबका कर रही है। तो कितने शेयर्स रीइश्यू करोगे आप? 600। वेरी गुड, 600 शेयर्स विल रीइश्यू। क्या प्राइस पे रीइश्यू कर रहे हो, देख के बता सकती हो? 9 रुपीज। 9 रुपीज पे कर रही हो। और कब रीइश्यू हो रहा है? आफ्टर अलॉटमेंट, आफ्टर फर्स्ट कॉल, आफ्टर सेकंड कॉल? कब रीइश्यू हो रहा है? आफ्टर सेकंड कॉल। Okay, tell me the entry now for reissue. Perfect. Bank share forfeiture Very good. to equity share capital. Perfect. Bank share forfeiture to equity share capital. How much you will write in bank? 600 into 9. Perfect, perfect. That is 5,400. How much in forfeiture? लॉस कितने का हो गया आपका? 600, 1 rupee. How much in capital? Capital को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 8 rupees, 10 rupees, 6 rupees, कितने 10 rupees. 10 rupees. Why you will multiply your capital by 10? Why you will multiply your capital by 10? When are we reissuing over here? कहाँ पे reissue हो रहा है ये? At the end. At the end. At the end मतलब 10 रुपया कॉल्ड अप है ना सबका, इसका भी 10 रुपया कॉल्ड अप ही रीइश्यू होगा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं नए शेयर होल्डर को कि 10 रुपए का शेयर है, 9 रुपया भरो, शेयर होल्डर बन जाओ, 1 रुपया हम लोग दे रहे हैं। तो बोलेगा आगे कुछ भरना है क्या? तो इस नए शेयर होल्डर को आगे कुछ भरना है? मुझे बताओ, ये जो नया रीइश्यू वाला शेयर होल्डर है इसको आगे कुछ भरना है? 1 भी रुपया भरना है अभी? बोलो बोलो। नो, क्योंकि सेकंड कॉल के बाद रीइश्यू कर रहे हो, सेकंड कॉल के बाद रीइश्यू कर रहे हो। तो फुल्ली 10 रुपी फुल्ली पेड अप हो गया इसका शेयर, और 1 रुपी लॉस हो गया जो कंपनी ने जेब से डाला, दैट इज टेकन फ्रॉम फोर फीचर। ओके, आगे इस शेयर होल्डर को कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। बस अभी लास्ट एंट्री रीइश्यू के बाद क्या करना है आपको? ट्रांसफर करना है शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। सोच के बताना, हाउ मच विल यू ट्रांसफर शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व? कितना ट्रांसफर करोगे? दिमाग लगाओ सब लोग, अपना अपना दिमाग लगाओ, बाजू वाले का दिमाग मत वापरो, अपना दिमाग लगाओ और बताओ। शेयर फोर फीचर बाजू में कोई नहीं है। 1575। आ गया ना आंसर? ये बाजू वाला, बोलो। 3375. 3375. हाउ मच विल यू ट्रांसफर फ्रॉम शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व? 3375. कैलकुलेट कैलकुलेट। शेयर फोर फीचर में कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है? नेट प्रॉफिट। सी लॉजिक क्या है? हाउ मच डू यू ट्रांसफर फ्रॉम शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व? इट इज प्रॉफिट माइनस लॉस।
लॉस तो यहां पर है 600 रुपया, प्रॉफिट ढूंढना है। प्रॉफिट मतलब क्या? कैपिटल की तरफ हड़पा हुआ पैसा, किसका? पी क्यू और आर तीनों का, पी क्यू और आर तीनों का हड़पा हुआ पैसा। तो ऊपर ढूंढो कहां पे आपने फोर फीचर क्रेडिट किया हुआ है। 1575 ये देखो ये रहा 1575 है एक, 1575 है एक, दूसरा है 2400, दो ही जगह क्रेडिट हुआ है फोर फीचर। तो कितना है 1575 प्लस 2400, इतना टोटल प्रॉफिट है माइनस 600 रुपया लॉस। कितना होता है ये? 3375 is what you transfer from share forfeiture to capital reserve. समझा लॉजिक? जो पैसा अपने कैपिटल की तरफ हड़पा है वो नफा, वो प्रॉफिट, माइनस रीइश्यू का लॉस अगर कुछ है तो। ओके, यहां पे हमने 9 रुपए में रीइश्यू किया इसलिए 1 रुपए का लॉस हुआ। समझो 10 रुपए में रीइश्यू करते तो 10 का शेयर 10 में रीइश्यू करते तो कुछ लॉस होता? कुछ लॉस ही नहीं होता। तो कितना ट्रांसफर होता है इन दैट सिचुएशन? 3975। व्हाट इफ 10 का शेयर 11 रुपए में रीइश्यू करते तो 1 रुपया क्या होता? प्रीमियम होता। फिर भी आप कितना ट्रांसफर करते हैं इस एंट्री में? 3975। 10 का शेयर 15 रुपए में रीइश्यू करते 3975 तो भी 3975। फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व मैक्सिमम 3975 होगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाले। बैठ रहा है दिमाग में कुछ? गेटिंग इट? सो फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस। ओके, अभी इसी का कनेक्टिंग सम है सम नंबर 18, नीचे पढ़ोगे ना उसी के लिंक्ड सम है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या दिया है। रेफर टू क्वेश्चन 17 एंड गिव द जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग री इश्यू ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। सर अभी तो री इश्यू किया है, साला वापस क्यों पूछ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस री इश्यू एंड द प्रीवियस री इश्यू? फाइनल का फर्स्ट कॉल के बाद रीइश्यू एट बिटवीन है, रीइश्यू एट बिटवीन, रीइश्यू इन बिटवीन है वो। जो नेक्स्ट वाला हम लोग देख रहे हैं ना सम क्वेश्चन 18, उसमें इट इज री इश्यू इन बिटवीन। कैसे पता चला आपको री इश्यू इन बिटवीन? क्या हिंट देख के पता चला सम में? तो पढ़ो आफ्टर फर्स्ट। हाँ देखो पढ़ो क्या दिया। इफ पीज एंड क्यूज शेयर्स वर री इश्यूड आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉर ₹8 पर शेयर। दिख रही है वो हिंट? आफ्टर अलॉटमेंट दे देगा, या फिर ऐसा बोलेगा 8 कॉल्ड अप या 8 पेड अप। 8 कॉल्ड अप 8 पेड अप का मतलब भी आफ्टर फर्स्ट कॉल होता है, इट इज वन एंड द सेम। ओके, 10 कॉल्ड अप 10 पेड अप मतलब फाइनल कॉल के बाद, फुल्ली कॉल्ड अप फुल्ली पेड अप मतलब फाइनल कॉल के बाद, 8 कॉल्ड अप 8 पेड अप मतलब फर्स्ट कॉल के बाद, 6 कॉल्ड अप 6 पेड अप मतलब अलॉटमेंट के बाद। ओके, ये टर्म्स याद रखना, 6 कॉल्ड अप 6 पेड अप। मतलब हम लोग जब आर का कैलकुलेट करेंगे तभी 20,000 ही लेना है। हाँ वो बाद में 20 लेना है, बट पहले री इश्यू तो कर लो। ये ओरिजिनल सम में ये री इश्यू एंट्री कहां पे आएगी बता सकते हो? कौन से नंबर पे आएगी ओरिजिनल सम में री इश्यू एंट्री? अगर इन बिटवीन री इश्यू हो रहे हैं पी और क्यू के शेयर्स, तो ये वाले सम में ऊपर जो किया तो कहां पे आएगी? 8 यहां पर आएगी, यहां पर इधर ये जो लाइन दिख रही है गंदी वाली, यहां पर आपकी री इश्यू एंट्री आएगी। 7th एंट्री के बाद तुरंत आपने 7th एंट्री में फोरफीट किया और 8th एंट्री में री इश्यू कर दिया। समझ में आ रहा है कुछ? दैट इज री इश्यू इन बिटवीन। अच्छा, इन बिटवीन अगर री इश्यू कर दिया तो क्या वापस री इश्यू करोगे एंड में? घड़ी घड़ी का दुकान खोल के रखा है, वही शेयर थोड़ी घड़ी घड़ी री इश्यू करोगे आप। एक बार री इश्यू कर कहानी खत्म। इसलिए वो दोनों सम इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। पहले सम में हमने री इश्यू किया था एट द एंड, अभी वाले सम में हम लोग री इश्यू कर रहे हैं इन बिटवीन। तो ये 7th एंट्री तक प्रॉब्लम सेम है, अभी डायरेक्टली 8th एंट्री कर रहे हैं री इश्यू का। कैन यू थिंक एंड टेल मी व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर री इश्यू? मीति, री इश्यू का एंट्री क्या होगा? Yes, sir. Bank share forfeiture to equity share capital. Okay. Bank account debit. I'm writing share forfeiture for the time being.
आई एम जस्ट Nil है। राइटिंग इट. हाँ Nil है share forfeiture. हाँ, absolutely right. Bank share forfeiture to equity share capital. Okay. अभी आपने कब रीइश्यू किया है शेयर? तो आफ्टर फर्स्ट कॉल किया है. तो आप कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? सोच के बताओ. 3 into 800. 300 into 8. 300 हाँ. into 8. 300 into 8 से मल्टीप्लाई करोगे. Why not 300 into 10? सर फर्स्ट कॉल के बाद किया है. फर्स्ट कॉल के बाद किया है. ओके, यहाँ ध्यान रखना है, जब भी री इश्यू इन बिटवीन है, फोर फीचर इन बिटवीन है, तो कैपिटल में सीधा आंख बंद करके 10 रुपया मत डाल लेना. 10 रुपया कभी आएगा? एट द एंड, जब एंड में री इश्यू फोरफिट किया है तभी. बीच में गया तो उसका रिस्पेक्टिव कॉल्ड अप वैल्यू. तो यहाँ पे 300 इंटू 2400. बैंक में कितना आएगा? सेम अमाउंट. सेम अमाउंट, क्योंकि 8 रुपए का शेयर 8 ही रुपए में किया है. 2400. तो फोर फीचर में कुछ लॉस हुआ है आपका? नहीं, कुछ नहीं, नील है. इसका प्रैक्टिकली समझना है तो हमारा वो वंशी साची वाला एग्जाम्पल था, वही है. यहाँ पे 300 शेयर है पी और क्यू के. पी और क्यू ने डिफॉल्ट किया, कंपनी को गुस्सा आया, कंपनी ने फोरफिट किया. फिर कंपनी क्या किया? कंपनी रुकी नहीं लास्ट कॉल तक. कंपनी ने जब भी फर्स्ट कॉल खत्म हुआ ना, तभी कोई नया बकरा ढूंढा. नए बकरे को पूछा कि भाई शेयर खरीदोगे क्या? वो नया बकरा पूछेगा मैं कितने शेयर्स हैं? कंपनी बोलेगी 300 शेयर्स है, 300 शेयर्स है, खरीदेगा क्या? नया बकरा बोलेगा ठीक है मैं खरीदूंगा. कंपनी पूछेगा क्या भाव पे दे रहे हो? तो कंपनी बोलेगी 8 रुपए पे दे रही. वी आर गिविंग यू द शेयर्स एट 8 रुपीज. तो नया बकरा पूछेगा कि क्या ये फुल्ली कॉल्ड अप है कि 8 कॉल्ड अप है? तो कंपनी क्या बोलेगी उसको? इज इट फुल्ली कॉल्ड अप और 8 कॉल्ड अप? 8 कॉल्ड. कंपनी बोलेगी नए बकरे को, देख ये 2 डिफॉल्टर है मिस्टर पी और क्यू, उसका शेयर हम तुझे बेच रहे हैं 8 रुपए में बेच रहे हैं, 8 रुपया कॉल्ड अप है. नया बकरा बोलेगा ठीक है, मतलब आप मुझे 8 का शेयर 8 में बेच रहे हो. तो फाइनल कॉल का क्या? मैं भरूं कि नहीं भरूं? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द कंपनी? भरना पड़ेगा. भरना पड़ेगा, क्योंकि 8 कॉल्ड अप है. जैसे सब लोग 2 रुपया भरेंगे, तेरे को भी 2 रुपया भरना पड़ेगा. तो नया बकरा बोलेगा ओके ओके मैं भर दूंगा. तो इसमें तो साला कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, 10 ही रुपया दे रहा हूं मैं. अभी 8 रुपया दे रहा हूं, बाद में 2 रुपया दूंगा, तो पूरा का पूरा 10 रुपया दे रहा हूं शेयर का. तो कंपनी बोलेगी बराबर है, हमारा नाम अच्छा है, हम कुछ लॉस नहीं कर रहे हैं, हम तुझे 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही दे रहे हैं. तो कोई लॉस हुआ कंपनी का यहाँ पे रीइश्यू में? कोई लॉस नहीं हुआ. दैट्स व्हाई आवर फोर फीचर अमाउंट इज नील. That's why our forfeiture amount is nil. Are you understanding? But यही called up 8 called up share अगर 7 रुपए में रीइश्यू होता तो 1 rupee per share का loss. 1 rupee would have been the loss. Are you understanding? 8 rupees का शेयर अगर 7 rupees में देती तो 1 rupee का लॉस होता. 8 called up शेयर अगर 5 rupees में देती तो 3 rupees का लॉस हो जाता. That would have been debited to forfeiture. Okay? जैसे आप 10 के साथ कंपेयर करते हो, अभी 8 के साथ कंपेयर करना है. तो लुक एट द टाइम ऑफ forfeiture एंड रीइश्यू. स्टेज, कौन से स्टेज पे फोरफिट हो रहा है, कौन से स्टेज पे रीइश्यू हो रहा है, उसी से आपको कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है. उसी स्टेज से यू हैव टू मल्टीप्लाई द कैपिटल. ओके, आफ्टर अलॉटमेंट होता तो 6 रुपीज, आफ्टर फर्स्ट कॉल होता तो 8 रुपीज, आफ्टर फाइनल कॉल हो रहा है तो 10 रुपीज. Capital will be multiplied with that called up value. Is this clear? सर फुल्ली पेड अप तभी आता ना जब फाइनल कॉल के बाद रीइश्यू हो रहा है. बराबर है, फाइनल कॉल के बाद रीइश्यू हो रहा है तो फुल्ली पेड अप, फुल्ली कॉल्ड अप. ओके, अभी इसके साथ एक छोटू सा चेंबूर के साथ तिलक नगर फ्री, ये वाला एंट्री क्या करोगे बोलो? What is this new? Share forfeiture to capital reserve. Share forfeiture to capital reserve account. Share forfeiture to capital reserve account. How much should I transfer from share forfeiture? 1575. देखो ध्यान से सोचो, किसका शेयर रीइश्यू किया था? सबका कर दिया क्या उठा के? पी क्यू आर तीनों का? पी और क्यू का किया है, खाली पी और क्यू का किया है.
तो किसका प्रॉफिट ट्रांसफर करना है? P पी and और Q. क्यू का प्रॉफिट माइनस पी और क्यू का लॉस। पी एंड क्यू का प्रॉफिट कितना था? ऊपर देखो, चेक करो। 1575। समझा? कहां से मिला? यहां से मिला, यहाँ पे ये रहा 1575, ये रहा, ये 1575। कैन यू सी दिस ब्लैक होल ओवर हियर? 1575, ओके। 1575 पी और क्यू का प्रॉफिट माइनस पी और क्यू का लॉस हुआ है कुछ? रेशियो में कुछ लॉस हुआ है? नहीं हुआ है। तो हाउ मच यू वुड ट्रांसफर? 1575, 1575। इज दैट क्लियर? 1575। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है वहां पे? पढ़ो। और एक केस दिया है ना, हेलो, बी पॉइंट पढ़ो, बी पॉइंट। प्लीज रीड दैट बी पॉइंट। इफ R's shares were reissued after the final call at 7 per share. ये किसका रीइश्यू का बात चालू है? आर का शेयर का रीइश्यू चल रहा है। आर के कितने शेयर्स थे? 300 shares. Who will tell me the reissue entry? Devanshi, tell me the reissue entry. Come on. Devanshi. हाँ, reissue entry. Bank account debit. Share forfeiture account debit to Correct. equity share capital. Very good. अभी now think and tell me when are we cancelling R का शेयर? क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कब कैंसिल कर रहे हो R के शेयर को आप? After final call. So what amount you will multiply your capital with? Six, 8, 10. कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई करने का अपने को अभी? 7. हाँ, वो तो पैसा मंगवाया है, वो तो 7 में रीइश्यू किया है बैंक। अच्छा, कैपिटल, कैपिटल वुड बी 10 रुपीज और 8 रुपीज। How much? 10 rupees. Why 10 rupees? Because we are reissuing after final call. ऊपर हमने 8 कॉल अब रीइश्यू किया था ना आफ्टर फर्स्ट कॉल, इसलिए 8 से मल्टीप्लाई किया। दिख रहा है? यहाँ पे अभी फाइनल कॉल के बात कर रहे हो ना, यहाँ पे कर रहे हो, ये दिख रही है, ये दूसरी वाली लाइन, यहाँ पे रीइश्यू कर रहे हो, आफ्टर फाइनल कॉल रीइश्यू कर रहे हो। यू मल्टीप्लाई योर कैपिटल बाय 10 रुपीज, ओके। 300 into 10, 3000। भी 10 रुपए का शेयर कितने में रीइश्यू कर रहे हो? What is the reissue price? 300 into 7, 2100. So what is the loss of the company? 300 into 3, that is 900. इसका लॉजिक समझा क्या हुआ? आर का फोरफिट किया हुआ शेयर, कंपनी ने नया बकरा ढूंढा, नए बकरे को बुलाया, बोला नया शेयर खरीदेगा क्या? बकरे ने पूछा कितने शेयर है? कंपनी ने बोला 300 शेयर है। बकरे ने पूछा क्या भाव में दे रहे हो? कंपनी ने बोला 7 रुपीज में दे रहे हैं। बकरे ने पूछा इज इट 8 कॉल्ड अप और फुल्ली कॉल्ड अप? क्या बोलेगी कंपनी? फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप। मतलब कंपनी बोल रही है तेरे को 10 का शेयर हम लोग साथ में दे रहे हैं। बकरा पूछेगा अच्छा 10 का शेयर साथ में दे रहे हो, वाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या मुझे इसके बाद कुछ भरना है? सेकंड कॉल वगैरह कुछ भरना है मुझे? नहीं। क्या उस बकरे को नया पैसा भरना है? इस बकरे को न्यू मनी भरना है कुछ आगे? नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है? क्योंकि these are fully called up shares. These are fully called up. 10 रुपीज का कॉल्ड अप शेयर्स आप इश्यू कर। कंपनी बोलेगी सबने 10 रुपया भर लिया, तेरा भी 10 कॉल्ड अप है, जब कंपनी बंद होगी, लिक्विडेट होगी, तुझे अपने 10 रुपए वापस मिल जाएंगे। आज तू 7 रुपए दे, जब कंपनी बंद होगी तुझे 10 रुपए मिलेंगे। खुशी खुशी आ जा हमारी कंपनी में। तो वो शेयर होल्डर आ गया, तो 3 रुपया किसने डाला? 3 रुपया किसने डाला उस शेयर? Who put that 3 rupees? कंपनी ने डाला ना लॉस करके। That's why that loss is 900. Can you see that? Share forfeiture debit हुआ है 300 into 3, 900. Are you all getting the difference between
फोर रीइश्यू इन बिटवीन एंड रीइश्यू एट द एंड, एंट्री पूरा सेम है, खाली एक चीज का ध्यान रखने का, कैपिटल को मल्टीप्लाइड बाय द कॉल्ड अप वैल्यू। कौन से स्टेज पे आप रीइश्यू कर रहे हो वो स्टेज के अमाउंट से मल्टीप्लाई करो, बस खत्म, उतना ध्यान रखना है। एंट्री सेम है, चाहे बिटवीन में करो चाहे एंड में करो, जर्नल एंट्री रिमेन्स सेम। इज इट क्लियर? Just the amount multiplied with capital will change. Amount multiplied with capital will change. Okay. So that done. उसके बाद लास्ट एंट्री छोटू वाला, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। बताओ मुझे किसका शेयर का बात चालू है? Whose shares have we reissued? Whose shares have we reissued? R. R. तो किधर से कितना क्या ट्रांसफर करना है सोचो। 1500. किसका प्रॉफिट माइनस किसका लॉस? R. आर का प्रॉफिट माइनस आर का लॉस। पी और क्यू का प्रॉफिट मत ले लेना यहाँ पे। आर का कितना प्रॉफिट है? पढ़ो, आर का कितना प्रॉफिट है? हाउ मच इज आर का प्रॉफिट? 2400। दिख रहा है ना, आर ने बेचारे ने एप्लीकेशन भरा था, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल भरा था, वो हड़पा हुआ पैसा, माइनस आर का लॉस। कितना है आर का लॉस रीइश्यू का? बोलो, आर का लॉस कितना है? 900. So 2400 minus 900. How much will you transfer? 1005. R का profit minus R का loss. Okay. That's your transfer entry. Now take standard textbook. Sir. अच्छा, यही सब में एक मिनट, यही सब में अगर आपने P और Q के शेयर इन बिटवीन रीइश्यू कर दिए होते, जैसे कि 8th एंट्री ये गंदी वाली लाइन के यहाँ पे रीइश्यू कर दिए होते, तो आपने सेकंड कॉल कितने शेयर्स पे मंगवाया होता? सेकंड कॉल 20,000। सेकंड कॉल पूरा 20,000 शेयर्स पे आया होता। इंस्टेड ऑफ यहाँ पे हमने कितना किया है? 19,700 किया है ना ऊपर, उसके जगह सेकंड कॉल वुड हैव बीन ऑन 20,000 शेयर, क्योंकि आपने बीच में ही रीइश्यू कर दिया है। गेटिंग इट? अगर बीच में रीइश्यू कर दिया तो सबसे पैसा मंगवा लो, 20,000 पे ही मंगवाते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने बीच में कैंसिल किया था लेकिन रीइश्यू नहीं किया था, इसके लिए 19,700 पे मंगवाया सेकंड कॉल। Got it? Yeah, what was your doubt, Yashvi? Please check out standard textbook, all of you. सर अगर आपका प्रीमियम 2 रुपीज है और एप्लीकेशन में 1 है, अलॉटमेंट में 1 है, और फिर उसमें हमने प्रोरेटा भी किया है और रिफंड भी किया है, तो फिर जो ड्यू वाला एंट्री रहेगा उसमें 4 अकाउंट क्रेडिट होगा ना? एप्लीकेशन ड्यू में हाँ 4 अकाउंट, हाँ बराबर, कैपिटल, प्रीमियम, बैंक और अलॉटमेंट। सर तो हमने अगर शेयर का 4 फीचर किया है तो फिर उसमें हाफ प्रीमियम ही लेंगे ना, जो अलॉटमेंट नहीं भरा है उसमें। परफेक्ट, हाफ प्रीमियम एप्लीकेशन का कंसिडर करेंगे कि भरा है? हाँ, एप्लीकेशन का कंसिडर करेंगे कि भरा है। एब्सोल्युटली राइट, बराबर, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। सर अगर प्रीमियम समझो 2 रुपया और तो 1 अलॉटमेंट पे होता है और 1 फर्स्ट कॉल पे होता है, तो फिर तो ऐसे ही करते हैं ना, मतलब सेम जो इसने बोला अभी, अलॉटमेंट में जो भर लिया है उसको डेबिट मत करो, वो रूल कांस्टेंट है। वंस रिसीव शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव शुड बी डेबिटेड। जितना रिसीव्ड है उसको डेबिट करो, जितना नॉट रिसीव्ड है उसको, जितना रिसीव्ड है उसको रहने दो, जितना नॉट रिसीव्ड है उसको डेबिट करो। ये सब है ना जो तुम बोल रहे हो, ये सब एग्जाम्पल आते थे हमारे जमाने में। When we were doing the shares and all, we had these types of sums, and Podar used to put this in the paper and 80% of the crowd used to fail. But now you don't have only those kind, not even here, not even in foundation, they have removed it from every category. Okay, जो आपको मैं करवा रहा हूँ ना, that is a very high level limit. It has crossed the foundation limit also. तो आपने अगर ये कर लिया तो आपको सीए फाउंडेशन का इश्यू ऑफ शेयर्स आ गया चैप्टर, समझ लो, एक आपका 10 मार्क्स सिक्योर हो गया है फाउंडेशन। ये लेवल का हमने किया हुआ है प्रैक्टिस विद इश्यू ऑफ शेयर्स। ओके और बोर्ड्स में थोड़ी फर्स्ट कॉल सब कुछ हो। बोर्ड्स में आपको मैं पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे ना, आपको पता चलेगा लेवल ऑफ बोर्ड्स। आप बोलोगे ये तो यार वो ड्रीम 11 का टीम है। सर ये वाला क्वेश्चन बोर्ड्स का था? ये नहीं रे भाई, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं आने वाला है तुम्हारे सामने। ये प्रैक्टिस के लिए करवाया है मैंने।
क्योंकि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में ये साल है ना, वो लोग ने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं और टफ सम्स डाले हैं, री इश्यू, फोर फीचर इन बिटवीन के, बट बोर्ड्स में आने के चांसेस नहीं है वैसे. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में दे हैव पुट, विल प्रैक्टिस दैट आल्सो, नाउ वी आर डूइंग दैट ओनली, बट बोर्ड्स में उसका आने का चांस नहीं. See, want you all to take some number. कहाँ गया? ये रहा. Want you all to take sum number 17, page 336. Sum number 17, page 336. Sum number 17, page 336. Question 17, page 336. Okay. See, 17, page 336. Okay. प्रशांत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, ए और बी दो एंट्रीज है, मिला सबको ए एंड बी, two sums you have given. 17th question, page 336. Prashant Trading Company Limited forfeited 100 equity shares of 100 each due to non-payment of final call of 30 rupees, and the same were reissued at 50 per share fully paid. तो किसका एंट्री पूछा है अपने को? forfeiture, reissue और capital reserve, ट्रांसफर. बराबर है, 3 एंट्री का सम है. एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3. पहला एंट्री फोर फीचर का. पहले आंख बंद करके मेरे को बताओ, हाउ इज द इश्यू? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, कुछ कैसे इश्यू किया? हाउ इज द इश्यू डन? एट पार. एट पार का इश्यू है, बराबर है. तो व्हाट शुड बी योर फोर फीचर एंट्री? यू नो द फॉर्मेट, ढांचा ऑफ फोर फीचर एंट्री, जस्ट डू दैट. व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ फोर फीचर एंट्री? इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिट. सर फुल्ली पेड दिया इसलिए पार को. नहीं, प्रीमियम कहाँ दिख रहा है सब में? 100 each है, 20 प्रीमियम, 30 प्रीमियम, 40 प्रीमियम, कुछ दिख रहा है क्या? प्रीमियम दिख ही नहीं रहा है. इट्स एट पार. So equity share capital account debit to call in arrear to share forfeiture, right? Correct? अभी आराम से सोचो सम में क्या हुआ है. There are how many shares? 100 equity shares of 100 each. ये कैंसल हो रहे हैं ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 30 रुपीज. ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 30 रुपए. तो थोड़ा कॉमन सेंस वापरो और बताओ 100 रुपए के शेयर में उसने क्या भरा और क्या नहीं भरा? 70 रुपीज भरा, 30 नहीं. 30 रुपीज नहीं भरा और 70 भरा. यस और नो? ये कुछ समझ आया आपको? फाइनल कॉल का नॉन पेमेंट मतलब 30 रुपीज नहीं भरा, इसलिए उसका शेयर कैंसल हो रहा है. तो 30 रुपीज नहीं भरा और 70 भरा. व्हेन आर वी कैंसलिंग द शेयर्स? आफ्टर फाइनल कॉल, मतलब एट द एंड. अब मुझे बताओ कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 100. तो 100 into 100 दैट विल बी व्हाट? 10,000. कॉल इन अरियर में क्या लिखते हो? जो पैसा भरा कि जो पैसा नहीं भरा? नहीं भरा. क्या नहीं भरा उसने? फाइनल कॉल. कितना? 30. तो 100 into 30 बोले तो 3,000. What did he pay towards capital? 7,000. 70. 100 into 70, 7,000. सिंपल, कहानी खत्म. बात समझ आई? प्रीमियम तो कुछ था नहीं. 70 रुपया नहीं भरा, 70 रुपया भरा, 30 रुपया नहीं भरा, 100 रुपए का शेयर है, एंड में कर रहे हो फॉरफिट. उसके बाद आगे पढ़ो. द सेम वे री इशूड एट 50 पर शेयर फुल्ली पेड अप. तो व्हेन आर वी री इशूइंग द शेयर्स?
एट द एंड आफ्टर फाइनल कॉल। ऑब्वियसली कॉमन सेंस यूज करो, अगर आपने फोर फीचर आफ्टर फाइनल कॉल किया है तो रीइश्यू तो आफ्टर फाइनल कॉल ही होगा ना, बिफोर हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? तो आपने कितने का शेयर कितने में इश्यू किया बता सकते हो? आफ्टर फाइनल मतलब कितने का कितने में इश्यू किया है? 100 का शेयर 50 में दे रहे हो तो 50 रुपया कौन डालेगा? कंपनी डालेगा, कंपनी का लॉस हो गया। कैन यू टेल मी द रीइश्यू एंट्री? थिंक ऑल ऑफ यू, क्या होगा रीइश्यू एंट्री? बैंक फोर फीचर, शेयर फोर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 100 into 100, क्योंकि लास्ट में कर रहे हो आफ्टर फाइनल कॉल। बैंक में कितना लिखोगे? 100 into 50, 5000। बहुत बड़ा नुकसान झेल रहा है कंपनी, बहुत पैसे की जरूरत होगी, 5000 रुपया लॉस कर लिया कंपनी ने। तो फाइनली व्हाट इज आवर नेट प्रॉफिट? वो छोटा सा एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। Okay, this is four feature, this is reissue, and this is transfer. How much would you transfer from share for feature to capital reserve? Bolo, bolo. 2000. 2000. 7 का प्रॉफिट माइनस 5 का लॉस, 100 के 100 शेयर्स रीइश्यू कर दिए हैं। कुछ बात समझ आई कि नहीं? ये था आपका ए पार्ट। अब देखते हैं बी पार्ट। पढ़िए क्या दिया है। ए पार्ट क्लियर है सबको? एनी डाउट इन ए पार्ट? एनीवन? ध्रुव पासवर्ड को समझ रहा है? हाँ सर। चलो नेक्स्ट वन, बी पार्ट। स्वानंद ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड forfeited 1000 equity shares of 10 each, on which application money of 2 and allotment money of 4 was paid. 1000 शेयर 10 रुपए के हैं, उसमें एप्लीकेशन का 2 और अलॉटमेंट का 4, 6 रुपया पे हो चुका है। The first call money of 2 per share remained unpaid. First call of 2 per share remained unpaid. The company reissued all the forfeited shares at 5 per share, 8 paid up. पहले तो मुझे पूरा ब्रेकअप बताओ, ये 10 रुपए का शेयर का ब्रेकअप क्या है? पूरा शेयर का स्ट्रक्चर बताओ मुझे। कितना एप्लीकेशन, कितना अलॉटमेंट? 2422 2422। ये पहले समझ में आना चाहिए सबको, देख लो ध्यान से। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल का 2 नहीं भरा और सेकेंड कॉल पे ऑब्वियसली 2 ही होगा, प्रीमियम तो है नहीं, 10 रुपए का शेयर है। ये बात समझ आई? अब मुझे ये बात बताओ, ये फोर फीचर कहां हो रहा है? क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा दिमाग लगाओ। व्हेन आर यू forfeiting the shares? Are you forfeiting them after allotment or after first call or after final call? Where are you forfeiting the shares? After first. Please read all of you. Please read all of you. After allotment. After allotment or after first call or after second call. Read. 1000 equity shares of 10 each are there, on which application money and allotment money of 2 and 4 was paid. अरे भैया, जब वो पे कर रहा है तो अलॉटमेंट के बाद क्यों कैंसिल कर रहे हो गरीब आदमी को? एप्लीकेशन तो भरा है उसने, अलॉटमेंट भी भरा है उसने, क्या नहीं भरा है? फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 2 वाज अनपेड। तो कब कैंसिल किया होगा? आफ्टर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल का बात ही नहीं किया अभी तक, मतलब यहाँ पे कैंसिल कर रहे हो आप। समझ में आ रही है कुछ बात? इट इज आफ्टर फर्स्ट कॉल। You're cancelling the shares after first call, which means you are cancelling the shares how? 8 called up, 8 paid up, या fully called up, fully paid up, या 6 called up, 6 paid up. कब cancel हो रहे? When are you cancelling the shares? After first call means what?
8 called up. 8 called up. 8 called up या 8 paid up बोलो, it is one and the same. It is cancelled as 8 called up. Okay. Once again you have to pass 3 entries. तो पहला एंट्री होगा आपका 4 फीचर का, तो एंट्री कर दो. प्रीमियम तो है नहीं. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर अकाउंट टू शेयर 4 फीचर अकाउंट. सोच के बताना, हाउ मेनी शेयर्स आर वी कैंसलिंग? 1000. 1000 shares we are cancelling. How much you will write in capital? 8000. 8,000 और 10,000? दिमाग लगाओ, यहाँ पे ही बात है दिमाग लगाने. 8,000. 8,000 because it is 8 called up. जब भी अभी बोला जिस स्टेज पे कैंसिल कर रहे हो कैपिटल को उससे मल्टीप्लाई करना. So 1000 into 8, 8,000. ठीक है. कॉल इन अरियर में कितना जाएगा? कॉल इन अरियर में क्या लिखते हो? 2000. जो नहीं भरा, तो क्या नहीं भरा? 2 रुपया नहीं भरा फर्स्ट कॉल का, तो 1000 into 2 that will be 2000. और 4 फीचर में क्या लिखते हो? जो भरा, तो 1000 into 6 that is 6000. सिंपल. 8000 में से 6000 भरा तो हड़प लिया, 2000 नहीं भरा, वो कॉल इन अरियर. फिर क्या कर रही है कंपनी? पढ़ो आगे. व्हाट इज द कंपनी डूइंग? रीइश्यू ऑफ शेयर्स कर रही है. हाउ आर द शेयर्स बीइंग रीइश्यूड? व्हाट प्राइस? चेक. 5 रुपीज में रीइश्यू किया है, बट 8 पेड अप किया है कि फुल्ली पेड अप किया है? 8 पेड अप. मतलब रीइश्यू भी कब होगा? After first call. After first call. So what will be the entry for reissue? Journal entry क्या बनेगी reissue की? Bank Share 4 feature. share 4 feature to equity share capital. Same entry करना है. कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करना है बताओ मेरे को? 8 से, 10 से, 6 से, कितने से? यूज योर ब्रेन्स, कम ऑन. कैपिटल 8 रुपीज. कितना शेयर था? 1000 into 8. 1000 shares are reissued at 8 rupees. तो कितना होता है? 8000. तो वो जो नया बकरा है उसको अभी रीइश्यू कर रहे हो, बोल रहे हो अभी 8 का शेयर 5 में दे रहे हैं, बाकी फाइनल कॉल तो भरना पड़ेगा. वो भी बोलेगा ठीक है भर दूंगा. तो 8000 बैंक में कितना आएगा? बैंक में हाउ मच विल यू रिसीव? 5000. 5 रुपए में रीइश्यू किया तो 5000. और शेयर 4 फीचर में कितना है? 3000. बस अब तो काम तमाम. एक लास्ट वाला छोटू सा एंट्री, शेयर 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व. शेयर 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व, हाउ मच? 3000. नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 3000. 6000 रुपया क्रेडिट माइनस 3000 रुपया डेबिट. 1000 शेयर का प्रॉफिट माइनस 1000 शेयर का लॉस. कुछ गुस्सा दिमाग में? बोलो. तो अभी है उसने 5 पे रीइश्यू किया है, तो अभी जब फाइनल कॉल मांगे कंपनी तो 5 रुपीज ही लेगी ना पूरा. फाइनल कॉल पे कितना रुपया मांगना बाकी है अभी सबसे? 8 पेड है तो 3 रुपीज ना. अबे फाइनल कॉल पे कितना रुपया मांगना बाकी है सबसे? ये रहा फाइनल कॉल, 2 रुपया. सबसे 2 ही रुपया मांगेगी, समझा? इसको भी 2 ही रुपया भरने का है. तो इसने पहले 5 भरा, अभी 2 भरेगा तो 7 रुपया भरेगा. 3 रुपया कंपनी ने जेब से डाला. दैट इज द मीनिंग. ये डाला ना 3 रुपया. ये क्या इधर 4 फीचर, समझा कि नहीं? फाइनल कॉल सबको 2 रुपया ही भरना है, इसको भी 2 ही रुपया भरने का. 5 रुपया इसने अभी भरा और 2 रुपया फाइनल कॉल पे, टोटल 7 रुपया भरा इसने 10 रुपए के शेयर का. 3 रुपया जेब में से डाला कंपनी ने. ये रहा 3 रुपया 4 फीचर. तुम चाहे रीइश्यू इन बिटवीन करो, रीइश्यू इन एंड करो, कंपनी का लॉस उतना ही रहने वाला है. लॉस चेंज नहीं होगा 4 फीचर का. Got it? Then come to sum number 18, page 337. Question number 18, page 337. Question 18, page 337. सर कितना समय? करते जाओ. Question 18, page 337. Dhananjay Electronic Company forfeited
500 equity shares of 10 each, on which 6 per share were received. Show the journal entry regarding the reissue of all these shares if shares are reissued at 8 per share fully paid up, shares are reissued at 7 rupees 8 called up, and shares are reissued at 5.5 rupees 7 called up. तो पहले तो मुझे बताओ फोर फीचर, एक फोर फीचर एंट्री हम लोग कर लेते हैं. टोटली कितने शेयर्स कैंसिल कर रहे हो तुम? हाउ मेनी शेयर्स आर वी कैंसिलिंग? पहले लाइन पे दिया हुआ है, पढ़ो. 500 शेयर. तो पहले फोर फीचर एंट्री कर लो, वो तो कॉमन ही है. फिर 3 डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं रीइश्यू के, तीनों साथ में नहीं होंगे, एक ही बार रीइश्यू होता है. खाली 3 अलग अलग एग्जांपल दिए आपको, अगर ये हुआ तो क्या, वो हुआ तो क्या, वो हुआ तो क्या. तो पहला फोर फीचर एंट्री कर लो. व्हाट इज द फोर फीचर एंट्री? ये ढांचा बना लो. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. बताओ मेरे को, प्रीमियम है क्या सम में? इज देयर एनी प्रीमियम? नो प्रीमियम. Equity share capital account debit to call in arrear to share forfeiture. Okay. सोच के बताओ, when are we cancelling the shares? When are we cancelling the shares? When are we cancelling the shares? बोलो. At the end, in between, when are we cancelling? In between. इधर in between है भाई. सर वो लोग ने ब्रेकअप दिया ही नहीं है. ब्रेकअप दिया ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ा ना? कितने का शेयर है? 10 में से 6 ही मिला है. 10 का शेयर है और 6 रुपया भरा है, मतलब 4 रुपया नहीं भरा है ना. समझा? देखो ब्रेकअप मालूम भी होता तो भी तो वही करता, एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 4, समझ. 2 और 4 6. अपने को तो ये चाहिए ना, जो भरा है जो नहीं भरा है. तो आउट ऑफ 10 6 रुपया भरा है, वॉर्डअप लिया, शेयर फोर फीचर, और 4 रुपया नहीं भरा, वो कॉल इन अरियर. करेक्ट. हाँ, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, कब कैंसिल कर रहे हो, कब रीइश्यू कर रहे हो, तो व्हाट विल यू अज्यूम? When are we doing it? End. At the end. At the end. Okay. यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो assume at the end. तो कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई होगा? 500 into 10, 5000. At the end कर रहे हो, लास्ट कॉल, फाइनल कॉल खत्म होने के बाद. सिया ये क्या रहेगा? क्या नहीं भरा उसने? 4 रुपीज नहीं भरा. सर एंड में कैसे हुआ? एंड में ही हुआ ना, 10 से कर रहे हो कैपिटल को मल्टीप्लाई. सर पर 10 में से खाली 6 ही भरा है ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बीच में ही फोरफीट कर दे रहे हैं हम लोग. तो दे विल स्पेसिफाई ना कि दे वर फोरफिटेड 8 कॉल्ड अप, या फोरफिटेड 7 कॉल्ड अप, या फोरफिटेड 9 कॉल्ड अप. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. कुछ दिया नहीं है मतलब कब फोरफिट कर रहे हो? ऑलवेज एट दी एंड. तो 500 into 10 एंड 10 रुपया मंगवाने के बाद कर रहे हो. तो 10 में से 4 रुपया भरा है, अच्छा 4 रुपया नहीं भरा है और 6 रुपया भरा है. 8 कॉल्ड अप दिया होता ना तो 500 into 8, 500 into 6, 500 into 2. 7 कॉल्ड अप फोरफिट होता तो 500 into 7, 500 into 6, 500 into 1 होता. ओके. यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो फुल्ली कॉल्ड अप एट 10 रुपीज. तो 500 into 10, 5000. टू कॉल इन अरियर 500 into 4, तो फोर फीचर कितना आएगा? क्या भरा है उसने? बोलो. 500 into 6. 500 into 6 भरा है, तो ये हड़प लिया कंपनी ने. 500 into 6, 3000. फोर फीचर एंट्री पहले बैठा है दिमाग में. 6 रुपया भरा, 4 रुपया नहीं भरा. कब फोरफिट कर रहे हैं? कुछ नहीं दिया. तो एट दी एंड फुल्ली कॉल्ड अप, कैपिटल को 10 से कर लिया मल्टीप्लाई. अब जाते हैं री इश्यू के केस पे, और री इश्यू के साथ याद रखना वो छोटू वाला एंट्री मुफ्त है, ट्रांसफर वाला. ओके. पहला केस पढ़ो री इश्यू का. शेयर्स आर री इश्यूड एज 8 per share fully paid up. फुल्ली पेड अप मतलब व्हेन आर वी री इश्यूइंग?
At the end. एट द एंड। तो पहले रीइश्यू का एंट्री कर लो, बैंक शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? एट द एंड कर रहे हो ना, तो कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करोगे फटाफट? 10 रुपीज। 500 इंटू 10 दैट विल बी 5000। क्या भाव पे रेशियो कर रहे हो? पढ़ो, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8। तो 500 इंटू 8 दैट विल बी 4000। लॉस कितना हो गया? 500 इंटू 2 दैट विल बी 1000। फाइनली ट्रांसफर एंट्री, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितना ट्रांसफर करना है? 500 शेयर का फॉर फीचर, 500 शेयर का प्रॉफिट माइनस 500 शेयर का लॉस। हाउ मच वुड यू ट्रांसफर फ्रॉम शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व? 2000। 3 minus 1, 3 minus 1, 2000। पहला वाला केस क्लियर? फर्स्ट केस इज क्लियर? एनी डाउट? टेल मी, बताओ बताओ बताओ, कोई डाउट? चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट केस, केस बी। ये केस ए था, केस बी। केस बी में वापस रीइश्यू कर रहे हो, पढ़ो क्या दिया हुआ है। शेयर्स आर रीइश्यूड एट 7 रुपीज, 8 कॉल्ड अप। अभी प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फुल्ली कॉल्ड अप आप 4 फीचर करो और 8 कॉल्ड अप रीइश्यू करो। अभी ये थियरी है तो कर डाल। पहले रीइश्यू एंट्री बोलो मेरे को। रीइश्यू एंट्री क्या होगा आपका? रीइश्यू एंट्री तो सेम है, बैंक शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सोच के बताना अभी कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई होगा? 8 से, क्योंकि 8 कॉल्ड अप है। 4000। बैंक में कितना आएगा? क्या प्राइस पे रीइश्यू किया? 7। तो 500 इंटू 7 3500। एंड 4 फीचर में कितना आएगा? 500 इंटू 3 रुपीज या 1 रुपी? 1 रुपी, 500 रुपया। 8 का शेयर साथ में गया है, 8 का शेयर साथ में गया है। ट्रांसफर एंट्री इमीडिएटली करनी है, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। सोचो कैसे करना है ये। 500 शेयर का प्रॉफिट माइनस 500 शेयर का लॉस। प्रॉफिट कितना था ऊपर मिलेगा आपको? 4 फीचर एंट्री में प्रॉफिट लिखा हुआ है हमने। कितना है प्रॉफिट हमारा? 3000 माइनस लॉस कितना हुआ? 500। हाउ मच वुड यू ट्रांसफर? कितना ट्रांसफर करोगे? 3000 माइनस 500, 2500। इज दैट क्लियर? सर पर ऊपर 10 कॉल्ड अप था, नीचे तो सिर्फ 8 कॉल्ड अप है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 10 कॉल्ड अप आप फॉरफिट करो और 8 कॉल्ड अप रीइश्यू करो। बट गवर्नमेंट स्टैंडर्ड टेक्स्ट, एनीथिंग इज पॉसिबल। सर तो पेपर में जाएगा तो सर हम लोग को नया पूरा नया बनाना पड़ेगा ना वापस शेयर फॉर फीचर। क्यों? क्योंकि सर 8 कॉल्ड अप है तो क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई 4 फीचर अमाउंट तो सेम ही है, कॉल इन अरियर चेंज होएगा। 8 कॉल्ड अप का तूने 4 फीचर एंट्री किया तो उसमें खाली कॉल इन अरियर का 2 रुपया चेंज होएगा ना तेरा। हाँ 6 रुपया तो भरा ही है उसने। हाँ सर। वो 4 फीचर तो हर एक एंट्री में सेम है। हाँ समझा? इनफैक्ट 4 फीचर एंट्री पूछा भी नहीं है वो लोग ने, हमने अपने कैलकुलेशन के लिए रखा है ऊपर। वो लोग ने खाली रीइश्यू एंट्री पूछा है, 4 फीचर एंट्री नहीं किया तो भी चलेगा। खाली तुमको समझ में आया कि 6 रुपया है, इसके लिए मैं वो एंट्री बताया तुमको। बाकी वो 6 रुपया अगर कंसेप्चुअली समझ में आ गया कि 6 रुपया ही मिला है तो तीनों रीइश्यू एंट्री डायरेक्टली कर सकते हो विदाउट डूइंग 4 फीचर एंट्री। गॉट इट? तीसरा केस ट्राई करो, चलो खुद से सब लोग। थर्ड केस खुद से ट्राई करो ऑल ऑफ यू। सी वाला केस पढ़ो क्या दिया हुआ है। शेयर्स आर रीइश्यूड एट 5.5, 7 कॉल्ड अप। चलो कम ऑन ट्राई। शेयर्स आर reissued at 5.5, 7 कॉल्ड। सर जब भी कॉल्ड अप होता है तो बीच में फॉरफिट किया रहता है। हाँ बीच में ही फॉरफिट हुआ रहेगा, बराबर। लेकिन 4 फीचर एंट्री नहीं करना है अपने को, खाली रीइश्यू करना। 4 फीचर एंट्री नहीं करना है, सिर्फ रीइश्यू एंट्री करना है। राइट
सर हो गया तो जा सकते हैं। ये कृपया रुकिए। सर जाने दो ना, रोहन सर का टेस्ट है, उसका भी पढ़ने को। वेट, थर्ड वन, रीइश्यू एंट्री लिखो पहले। बैंक शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है। टेल मी, थर्ड केस में हाउ मच विल मल्टीप्लाई योर कैपिटल विथ? सोचो। 7. 500 into 7 called up है, so that will be 3500. How much in bank? 500 into 5.5, that will be 2750. 2750, and 750 in share forfeiture, that is 500 into 1.5. Got it? समझा ये part? And then transfer entry, so that is share forfeiture to capital reserve. बताओ, how much you will transfer from share forfeiture to capital reserve? 2250. 500 शेयर का प्रॉफिट माइनस 500 शेयर का लॉस, तो कितना था? 3000 माइनस 750, दैट इज 2250. 2250, इज दिस क्लियर? बोलो। 2250 बैठा दिमाग में? कंफर्टेबल? लास्ट सम नंबर 8 उधर ही है नीचे, पेज 343. सम नंबर 8 पेज 343. सम नंबर 8 पेज 343, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. Sum number 8, page 343. It has got A, B, and C. I want you all to try only A part. खाली A part try करो. A part. पढ़ो क्या दिया है, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करो, दिमाग लगाओ, और कौन सा एंट्रीज करना है वो सोचो. Asha Limited forfeited 100 equity shares of 20 each, fully called up, for non-payment of first call of 3 per share and final call of 5 per share. 80 shares of these were reissued at 15 per share, fully paid up. पहले तो बताओ कौन से एंट्रीज करने हैं? How many entries? Forfeiture or reissue. Forfeiture, reissue and transfer, 3 entries. Okay. फिर बताओ प्रीमियम है क्या सम में? Is there any premium? Is there any premium in the problem? Please check. No premium, right? Getting that? There is no premium in the problem. So use your brains. The face value of share is 20 rupees, not 10. Use your brain. Try it. 3 entries, forfeiture, reissue, and transfer.
मिला? हाँ सर हो गया। देखो बताओ मुझे पहले तो फोर फीचर एंट्री. ओके, यू ओनली आंसर नाउ एवरीथिंग. टेल मी कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? कितने शेयर्स कैंसिल किया आपने? 100 into 20. 100 into 20, क्योंकि we are cancelling the shares at the end, fully paid up, दिया हुआ है, fully called up. Okay, so 100 into 20, that will be 2000. How much will be in call in arrear? क्या नहीं भरा था उसने? Final call and first 800. call. हाँ, 8 रुपया नहीं भरा था, तो 100 into 8, 800 रुपया कॉल इन अरियर रहेगा. How much will go in four feature? 1200. 100 into 12, 1200. ये बात घुसा सबका दिमाग में? All of you got this? Hello, hello. Now reissue. When are we reissuing the shares? Obviously after final call. At what price are we reissuing the shares? 15 rupees. 15. लेकिन how many shares? 80 shares. 80. हाँ, 100 ले लिया तो भोपाड़ा पहुंच गए कल्याण. 100 शेयर्स कैंसिल किया है लेकिन रीइश्यू खाली 80 किया है. तो रीइश्यू एंटी कितना शेयर्स का करने का? 80 शेयर्स का ही करने का. तो बैंक में आएगा क्या? 80 into 15, 1200. फोर फीचर में आएगा 80 into 5, 400. और कैपिटल में आएगा 80 into 20, 1600. ऐसा करना है, ऐसा. समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? बताइए. Are you understanding this? मिला? So bank share forfeiture to equity share capital, it will be 80 into 15, 80 into 5, and 80 into 20. Why not 100? You got it? Because you have reissued only 80 shares. Now tell me the transfer entry. How much will you do? 560. 560. Can you do 1200 minus 400? No. No. ये हर एक सब में ऐसे ही तो कर रहे थे अभी तक. 100 और 80 80 shares का ही लेने का है हाँ, खाली. ऐसे दिमाग चलाने का. शेयर फोर फीचर और नंबर ऑफ शेयर्स याद है? जब सबके सब शेयर रीइश्यू नहीं करते थे तब सबका फोर फीचर ट्रांसफर भी नहीं होता है. हाउ कैन यू कंपेयर 100 शेयर का प्रॉफिट विद 80 शेयर का लॉस? दैट्स रॉन्ग. तो ये 1200 रुपया है ना, ये 100 शेयर का है. तो 80 का कितना? 80 शेयर का प्रॉफिट कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 960 मिलेगा. 960. आर यू गेटिंग दैट? 960 is the profit on 80 shares minus the loss of 400. 960 minus 400, 560 rupees. 560 is what you transfer from share forfeiture to capital reserve. This was the catch. Did you get the catch? The catch drop. समझा क्या किया था यहाँ पे? What if I would have reissued 70 shares? What if I would have reissued 70 shares? 80 के बदले 70 लिखते हैं. तो 80 के बदले 70 का करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट माइनस ये 70 का फोर फीचर आता है नीचे. ये फोर फीचर भी चेंज हो जाता है. 70 into 5, 350 हो जाता है. 70 का प्रॉफिट माइनस 70 का लॉस. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जितना रेशियो किया उतना ही ट्रांसफर करो. 20 शेयर अभी भी बाकी है तो उसका फोर फीचर पड़ा रहने दो. नेक्स्ट रीइश्यू में काम आएगा लॉस एडजस्ट करने के लिए. ओके बैठा दिमाग में ये? अभी होमवर्क लेना है आपको. क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ. ऑल ऑफ यू कम टू क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पेज 333. क्वेश्चन 15 स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पेज 333. 15th क्वेश्चन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पेज 333. पढ़ो क्या दिया है. Subscribed capital of Parag Limited is 30,000 equity shares of 100 each and 50,000 preference shares of 100 each. Are we bothered about authorized capital? Ignore. आगे पढ़ो. On both of these shares, 80 per share were called up. बड़ा सा हिंट दे दिया. 80 per share were called up का मतलब क्या हुआ? कोई समझाओ मेरे को.
80 पर शेयर वेयर कॉल्ड अप का मतलब क्या है? 80 तक ही भरा था। 80 तक ही मांगा है अभी तक पैसा, दैट इज द मीनिंग। फिर आगे पढ़ो। द डायरेक्टर्स forfeited 500 equity shares held by Ashish who failed to pay the first and second call each of 20 per share. आशीष भाई ने पहला और दूसरा कॉल 20-20 रुपए का नहीं भरा, इसके लिए उसका शेयर कैंसिल किया। तो बेसिकली 80 में से आशीष ने कितना नहीं भरा है? 40 नहीं भरा है, तो कितना भरा होगा? 40. ओके, आगे बढ़ो। Also forfeited 500 preference shares of Ashok who failed to pay 20 per share on allotment, 20 per share on first call and 20 per share on final call. तो अशोक का भी forfeit हो रहा है, बट अशोक ने क्या नहीं भरा है? अलॉटमेंट का 20, फर्स्ट कॉल का 20 और सेकंड कॉल का 20, मतलब टोटल 60 नहीं भरा है। तो क्या भरा होगा? 20 on application। तो इससे क्या आप मुझे पूरा रेंज बता सकते हो शेयर पे पैसा कैसा मांगा है? What is the breakup? 20, 20, 20. Application 20, allotment 20, first call 20, second call 20, third call 20. थर्ड कॉल अभी तक मांगना बाकी है, थर्ड कॉल हुआ नहीं। ओके, 80 कॉल्ड अप पे ही पूरी कहानी वाइंड अप कर रहे हो। फिर आगे क्या दिया है? द डायरेक्टर्स रीइश्यूड दीज शेयर्स, forfeited shares of Ashish at 60 per share, 80 paid up, and of Ashok at 72 per share, 80 paid up. All reissued shares are taken up by Anaga. वो अनगा ले या फनगा ले, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने को तो रीइश्यू एंट्रीज करना है, बराबर है। सो व्हाट एंट्रीज यू नीड टू पास? टोटल हाउ मेनी एंट्रीज विल कम? थिंक। 6 एंट्रीज, 6 एंट्रीज करने का। व्हाट आर द 6 एंट्रीज? 3 इक्विटी का, 3 प्रेफरेंस का। इक्विटी forfeited, इक्विटी रीइश्यू, इक्विटी ट्रांसफर, प्रेफरेंस forfeited, प्रेफरेंस रीइश्यूड, प्रेफरेंस ट्रांसफर। इज दिस क्लियर? 6 जर्नल एंट्री। नाम इक्विटी के वक्त इक्विटी, प्रेफरेंस के वक्त प्रेफरेंस, बाकी पूरा सेम। इंटरप्रेट करो, खुद से दिमाग लगाओ, ट्राई करो। नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस, दैट्स फॉर होमवर्क। कुछ डाउट्स है तो वेट करो, अदरवाइज यू कैन लीव। टाटा बाय बाय, सी यू।